Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Chemistry, episode 1.1. We are going to talk about chapter 1, that is modern periodic table and periodic properties. In this session, we are going to talk about modern periodic table, reasons for periodicity of properties of elements in periods and groups, description of long form of periodic table, characteristics of long form of periodic table, periods and columns. Modern periodic table. The word periodic table you might would be hearing since last 3 years in the chemistry subject, and that periodic table is basically related to the arrangement of elements, and as well as you might would have heard about the name of the scientists such as J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Dalton, Dobnier, Mendeleev. So these people played an important role in studying the structure and studying the structure of an atom, as well as arranging the atoms and elements in a proper order. Mendeleev played an important role. He was a pioneer in the field of this arrangement of elements in its own periodic table. In 1913, Moseley showed a X-ray analysis that एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक वेट. उसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वेट 1913 से पहले उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था. दैट मीन्स एटॉमिक वेट वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. लेकिन मोस्टली ने क्या किया, मोस्टली ने जब एक्सरे स्टडी किया तो उसने बताया कि भाई एटॉमिक वेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस देना है. और एटॉमिक नंबर्स का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर सेम इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम. अगर 5 प्रोटॉन्स है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है. इसलिए फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक लॉ था वो रिप्लेस हो गया एटॉमिक वेट से, और एटॉमिक वेट नंबर जो इसको रिप्लेस कर दिया, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक वेट को निकाल दिया, एटॉमिक नंबर को डाल दिया. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, the modern periodic table consists of what? Consists of atomic number, and they started arranging the elements according to their atomic number. It states that the physical and chemical properties of an elements are the periodic function of their atomic numbers. When elements are arranged in an increasing order of their atomic numbers, there rises a periodicity in the properties of an elements. तो क्या हो गया? जैसे जैसे वो इंक्रीज, जैसे जैसे बढ़ता गया उसकी periodicity भी बढ़ती गई. Periodicity in the properties of elements means characteristics properties of elements occur at a definite intervals in the modern periodic table. यानी कि क्या इम्पोर्टेंस दिया गया? एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस दिया गया. फिर पता चला कि भाई नहीं, जैसे जैसे वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम एलिमेंट्स को फॉर्मुलेट करते हैं, एलिमेंट्स को हम एक जगह पे रख रहे हैं उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, टेबुलर फॉर्म में, तो पता चलता है कि भाई सभी की प्रॉपर्टीज़ कुछ इंटरवल्स के बाद रिपीट होती हैं. अगर एलिमेंट नंबर 1 होगा तो 2 के बाद रिपीट होना शुरू. अगर एलिमेंट नंबर 3 है तो 3 नंबर का एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी. अगर एलिमेंट नंबर 11 है तो उसकी प्रॉपर्टी 3 जैसे होगी. उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होना शुरू होती है. इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डेफिनेट इंटरवल्स में है उसका प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगता है. वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर, देखो कहाँ पर, 2 के बाद रिपीट होगा, या तो फिर 8 के बाद रिपीट होगा, या तो फिर 18 के बाद रिपीट होगा, या तो फिर 32 के बाद रिपीट होगा इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Periodic properties are the properties which appear at a regular intervals in the modern periodic table. The periodic properties are atomic radii, ionization potential, electron affinity, electronegativity, non-metallic and metallic characters, density, melting and boiling points, nature of oxides, oxyacids and hydrates. तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक रेडियस वाली प्रॉपर्टी या तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी, वो कुछ इंटरवल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको रिपीट होते हुए दिखाई देती है, जो मेंडलीफ में ऐसा नहीं था. एनीवे,
हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतना डीप हमें जाना नहीं है, क्योंकि मेंडलीफ के अंदर भी थोड़े बहुत सारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं, जो मेंडलीफ का जो पायनियर पीरियोडिक टेबल था उसमें से थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, बाकी का तो वो ही उसने रखा हुआ। एनीवे, वी मूव ऑन टू द फर्दर वन, द रीजंस फॉर द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। Periodicity property of elements at a regular intervals is due to the occurrence of similar valence shell electronic configuration। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेस बता दूँ यहाँ पर। नील्स बोर ने, हाँ चलो, एटम के बारे में तो पता चल गया था उनको कि भाई ये एटम है, अंदर प्रोटॉन है, साथ में न्यूट्रॉन्स है, आजू बाजू क्या घूम रहा है, तो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, अगर मान लो कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ही घूम रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर, ही सेड दैट एटम्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट शेल्स। जैसे कि जो शेल एकदम नज़दीक वाला शेल होता है, यानी कि न्यूक्लियस के वाला जो शेल होता है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चले। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाजू वाला शेल, तो उसे कहते हैं के शेल, फर्स्ट नंबर का शेल। उसके बाजू वाला शेल एल शेल, उसे कहते हैं सेकंड नंबर का शेल। उसके बाजू वाला शेल, दैट मीन्स द शेल ही इज काउंटिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। वो जो काउंटिंग है शेल का, वो अंदर की ओर से बाहर की ओर आता है, यानी कि के एल एम। तो एम नंबर का शेल यानी कि थर्ड शेल हुआ, एल नंबर का शेल दैट इज सेकंड शेल हुआ, और के नंबर का शेल दैट इज फर्स्ट शेल हुआ। और उसने बताया कि के कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम कैन एकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। तो उसके लिए अभी यहाँ पे एम पे, तो अभी आपको पता नहीं है, तो उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसका फॉर्मूला है 2n², जहाँ पर n नंबर ऑफ शेल है, बराबर। विच नंबर शेल यू आर टॉकिंग अबाउट, एम इज विच नंबर शेल, थर्ड नंबर शेल। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 2 सा 18। दैट मीन्स एम कैन एकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से उसकी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, वो नील्स बोर ने बताया। और उसके हिसाब से अगर मुझे कोई, मान लो कि एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट का 2 8 18 आ रहा है, जैसे कि 2 अंदर वाले शेल के अंदर के शेल में, 8 सेकेंड शेल में, 18 थर्ड शेल में, तो उस एलिमेंट को हम किस तरह से अरेंज करेंगे। तो हमने उसको इस तरह से अरेंज करवा दिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कि 8 + 2 10, 10 + 18 28। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 28 है। मान लो कि भाई कोई x नाम का एलिमेंट है और x नाम के एलिमेंट के पास 28 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखोगे, x एक मिनट, आई एम जस्ट गेटिंग रीड ऑफ दिस वन सो आई कैन गेट स्पेस। तो हम लिखेंगे किस तरह से, x 28 है ना, तो हम लिखेंगे किस तरह से, x 2, 8, 18। यानी कि पहले शेल के अंदर जो फर्स्ट शेल है के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़। ये तो जो 28 बता रहा है वो एटॉमिक नंबर है उसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के में होंगे, 2, एल में 8, एम में 18, टोटल मिला के कितने हुए 28। तो इस तरह से, सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स। The properties of an element depends upon the number and the arrangement of electrons in a shell, including the valence shell। और जो लास्ट शेल था, मैं फिर से वही एग्जाम्पल, चलो मैं एक दूसरे का एग्जाम्पल लेता हूँ, सोडियम का। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोडियम इन द फ्यूचर। तो सोडियम में आएगा 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम का जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, हम लिखेंगे किस तरह से, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, 2, 8, 1। तो ये के शेल में, ये के शेल में, एल शेल में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में, एम शेल में। तो जो बाहर का जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, दिस 1 एम विच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस शेल को कहेंगे वैलेंस शेल, बराबर। तो जिसके भी वैलेंस शेल के पास
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जिसके भी वैलेंस शेल के पास, फिर से बता रहा हूँ, जिसके भी वैलेंस शेल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल सोडियम, और दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लिथियम का 3, तो लिथियम का 3 है बराबर, तो उसके लिए जाएगा किस तरह से, तो कि लिथियम के लिए लिखेंगे Li2,1, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना, मुझे कितने शेल से वो नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 शेल हुए, यहाँ पे 2 शेल, आई एम नॉट वरीड अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स, आई एम जस्ट वरीड अबाउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल. In the lithium there is 1 electron, in sodium there is 1 electron. That means the property of sodium and the property of lithium are equal. That what the modern periodic table says. क्योंकि वो एक ही ग्रुप के लोग हैं, सोडियम भी उसी ग्रुप का है, लिथियम भी उसी ग्रुप का होगा. क्यों? क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि हम जो ग्रुप्स और पीरियड्स पढ़ते हैं उसके अंदर जो ग्रुप है उसके अंदर उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है. सिर्फ रिएक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, कौन पहले रिएक्ट होगा, रिएक्ट तो होगा, लेकिन कौन पहले होगा, कौन पहले नहीं होगा, वो तो सब में होता है ना, सब में होता है कि भाई मैं पहले करूँगा, वो पहले करेगा, दैट इज़ देयर. बट हियर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, दैट दे आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दे आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दैट मीन्स दे आर कमिंग अंडर द 1 ग्रुप. वाइल द नंबर ऑफ शेल्स, ये जो शेल है ना, लिथियम के अंदर कितने शेल थे, 2, क्योंकि 3 है तो 3 के लिए कैसे एकोमोडेट करोगे, पहले 2 जाएगा, फिर बाकी बचा कितना, 1, तो कितने शेल्स के अंदर एकोमोडेट हो जाता है, 2. तो यानी कि ये पीरियड नंबर 2 है, जिसके पास 2 नंबर के. मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे लिथियम का फिर से एग्जांपल लेते हैं, जैसे बता देता हूँ. लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो लिखेंगे कैसे, लिथियम के लिए 2,1, सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11, तो उसके लिखेंगे कैसे, सोडियम राइट 2,8,1, क्योंकि 2 + 8 कितना होगा, 10, 10 + 1 कितना होगा, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ये पहले नंबर का शेल, ये दूसरे नंबर का शेल बराबर, और ये तीसरे नंबर का शेल. लेकिन लिथियम के पास तीसरा शेल नहीं होता है, देयर इज़ नो थर्ड शेल, इट इज़ ओनली इन द सोडियम. तो ये जो नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स वो क्या बताता है, वो पीरियड बताता है. और ये जो नंबर 1 electrons in the numbers of electrons in the valence shell shows what, shows group. तो ये कौन से ग्रुप में आता है, पहले नंबर के ग्रुप में. लिथियम कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है. सोडियम के पास कितने शेल्स है, 3, 1 2 3, तो तीसरे पीरियड में आता है. तो व्हाट इज द, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पीरियड्स एंड ग्रुप्स. पीरियड्स कैन बी आइडेंटिफाई विद द नंबर ऑफ shells and the group can be identified with the number of electrons present in the valence shell. Simple. समझ में आया कि नहीं. तो इस तरह से जाता है. Let us move on to the next one. The property of elements depends upon the number and arrangement of electrons in the shell, including the valence shell. That is why in the same period or a group, a particular property increases or decreases due to the gradual change in the electronic configuration of element. जो मैंने बताया वो इसकी रिएक्टिविटी के उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, लेकिन प्रॉपर्टी तो बेसिकली सेम रहने वाली है. On the basis of the law, Mosseri prepared a long form of periodic table which consists of 7 periods and 18 groups. इसलिए फिर उसने मॉसली ने क्या बना दिया, 7 पीरियड है. 7 पीरियड का मतलब क्या, 7 शेल्स होंगे, और 18 ग्रुप्स का मतलब क्या, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 18 वाला अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का. इस तरह से. चलो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल रो. हॉरिजॉन्टल रो ही रखना पड़ेगा ना, हॉरिजॉन्टल रो रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई पीरियड्स कितने हैं. पीरियड्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ शेल्स, और ग्रुप्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. बराबर कि नहीं. ओके. Such that all the elements having same number of valence electrons come under the vertical column called group. This is not only ensures periodicity in electronic configuration but periodicity in the chemical properties. So it does not ensure periodicity in electronic configuration but periodicity in the chemical properties. वो बता दी, chemical properties बता दी. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने कॉलम होंगे भाई, 18 कॉलम है, उसे कहते हैं ग्रुप्स. सब ग्रुप्स के कौन से ए एंड बी, दे आर सेपरेटेड. ग्रुप 1 to 13, 1 2 and 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द टेबल. 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द टेबल. 18 नंबर वाला जो है वो कम्प्लीटली फील्ड शेल होता है, इसलिए वो 0 एलिमेंट्स कहलाता है, या तो फिर नोबल गैस या तो फिर इनर्ट गैसेस कहलाता है.
ग्रुप 1 and 2 स्ट्रांगली मेटालिक एलिमेंट्स, बराबर, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 13 to 17 आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर मेटल एक्सेप्ट बोरॉन, बराबर, बोरॉन के अलावा, क्योंकि बोरॉन क्या करता है, बोरॉन वो सेमी सॉलिड में आता है, मेटलॉइड्स में आता है, ये ज़रा याद रखना. और ग्रुप 14 to 17 जो है वो नॉन मेटालिक में है. मैं बताता हूँ उसका डायग्राम. मेटलॉइड्स आर शोन इन द ब्लू कलर एंड हैज़ बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. तो पूरा को पूरा अगर पीरियोडिक टेबल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है, तो आप देखना अर्थ एलिमेंट्स, अल्कलाइन, बराबर, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स. तो यहाँ से ये सब, ये आप देखोगे तो ये सब राइट हैंड साइड लेफ्ट है, ये मेरा कौन सा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा कौन सा राइट हैंड साइड. तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसके मेटालिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे मेटल है, धीरे 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 मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी. तो लास्ट में जो मिलेगा उसको तो कोई वो है ही नहीं. द रीज़न फॉर दैट वन इज़ वॉट, बिकॉज इट इज़ वॉट, इट इज़ नोबल गैसेस. वो क्या है, लास्ट वाला जो है वो नोबल गैसेस है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, बराबर. वो देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, फिर से एक दो बार पढ़ो, रिपीट करो तो पता चल जाएगा. पीरियड्स, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. देयर आर 7 periods in all such that each period has a consecutive and continuous atomic number. The number of elements in a period corresponds to the maximum number of electrons which can be accommodated in one of its shell, बराबर. वो पीरियड के हिसाब से पता चला, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने वाले हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएगा शेल्स के अंदर, बराबर. जैसे कि एज फॉर एग्जांपल के शेल के अंदर 2, ये के शेल, एल के अंदर कितने 8, एम के अंदर कितने 18. तो इस तरह से जा रहा है. तो ये 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता. अगर मान लो किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम के अंदर, तो पहले 2 का एकोमोडेट हो गया, तो 1 क्या करेगा, 2 में नहीं आएगा, तो इसमें जाएगा. इसकी टेंडेंसी कितनी है, एल शेल की टेंडेंसी कितनी है, टू एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट, ऑक्टेट रूल. इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑक्टेट रूल. ये ऑक्टेट रूल कि भाई ये सब ऑक्टेट रूल है कि भाई के नंबर का शेल 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता. एल नंबर का शेल, एल नाम का जो शेल है, सेकेंड नंबर का शेल, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता इस तरह से. तो अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है. एंड इट इज़ गिवन बाय क्वांटम नंबर एन. द नंबर एन रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल एज काउंटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. समझ में आया किस तरह से कहाँ से देखता है, वो तो मैंने बताया था ना आपको कि भाई ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल. तो उसको कहाँ से देखना है, आउटर मोस्ट शेल, यहाँ से न्यूक्लियस से, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि इनसाइड से लेके आउटसाइड में जाना है आपको. इनसाइड से लेके कहाँ जाना है, आउटसाइड में जाना है. यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से. ये पहले नंबर का शेल, दूसरे नंबर का शेल, तीसरे नंबर का शेल, और ये 4th नंबर का शेल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. लेट अस, और ये फॉर्मूला भी मैंने बता दिया आपको, 2n² वाला जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बता दिया. लेट अस गो टू द कॉलम पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. Vertical columns in a periodic table are called groups. There are 18 groups in the long form of periodic table. Elements in the groups do not have consecutive atomic number. वो तो सेम रहेगा, क्योंकि पीरियड्स के अंदर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से. लेकिन अगर हम सही तरीके से अगर मैं अरेंज करूँ, then it is like this: 1 2 3 4 5 6 7, बराबर. यानी कि 7 का मतलब क्या, किस तरह से अरेंज करा, 2 और 5, बराबर, फिर 2 और 6, 2 और 7, बराबर, और फिर आएगा 2 और 8. यानी कि जो 10 होगा यहाँ पे आएगा. ओके, वंस अगेन, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे, चलो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ, तो 1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन तो 1, 3 के लिए पता है ना आपको क्या आएगा, 2,1, 4 के लिए 2,2, 5 के लिए 2,3, 6 के लिए 2,4, 7 के लिए 2,5, 8 के लिए 2,6, 9 के लिए 2,7 और 10 के लिए 2,8. तो अभी देखो ये कम्प्लीटली फिल्ड शेल हो गया. ये तो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड शेल है जो डुप्लेट फॉलो कर रहा है, और ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है. तो इस तरह से अरेंज करना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर. लेकिन अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है. 1 3, फिर 10 के बाद कौन सा आएगा नीचे, 10 के बाद कौन सा आएगा, तो 10 के बाद यहाँ पे नीचे आएगा 11. तो 11 के लिए पता है, 11 के लिए हमने सोडियम, तो सोडियम के लिए हमने ऑलरेडी कर दिया था ना.
व्हाट इज़ दैट 2,8,1, फिर 2,8,2, 2, कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पर 8 नहीं आ जाता या तो 18 नहीं आ जाता तब तक. So that is what it is been arranged. However, each element in the group has the same number of electrons in the outermost shell, and hence all the elements of the group have the same chemical property. उसके पास प्रॉपर्टी कैसी रहने वाली है? सेम. जैसे कि मैंने लिथियम के बारे में बताया, सोडियम के बारे में बताया. लिथियम का था 2,1, सोडियम का था 2,8,1. समझ में आ? तो यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, और इसके पास भी 1, यानी कि इन लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक रहेगी. ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहा है, ये ग्रुप है. इस बाजू जाते हो तो पीरियड आएगा, बराबर. हमें तो इस बाजू ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, कॉलम के बारे में बात कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे आ तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे रहने वाली है? सेम. द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 0 आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज. ऑल द एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप except helium, that is 2 electrons, others are having 8 electrons in the outermost shell. The element in one, that is alkali metals, जो पहले वाला ग्रुप है ना, जो मैंने लिथियम और सोडियम पोटेशियम जो बता रहा हूँ ना, वो अल्कली मेटल्स है. फिर उसके बाजू वाला जो ग्रुप होगा ना, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है. तो आपको ये ज़रा याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. एलिमेंट 17 आर कॉल्ड हेलोजेंस, वाइल एलिमेंट्स इन द ग्रुप 312 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जो बीच वाला जो है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद वाला, बराबर. तो मैं फिर से वो बता दूँ, हमारा जो पीरियोडिक टेबल था वो. सो दिस वन, द फर्स्ट वन इज़ अल्कलाइन, दिस वन इज़ अल्कली अर्थ मेटल्स, और यहाँ से यहाँ तक का जो मैं बता रहा हूँ, बराबर. सो इट इज़ दैट वन. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पेन अल्टीमेट जो सेल होता है आर इनकम्प्लीट, वो पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा. समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स एंड कॉलम्स. स्टिल वी हैव टू गो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट एपिसोड. आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड अंडरस्टूड वेरी वेल. इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो. आई विल बी एक्सप्लेनिंग in the miscellaneous one, but please watch this video 2 to 3 times, then only you will be able to understand. Thanks very much guys, and I'll see you in the next episode. Thank you.